welcome to all of my friends. Today we are going to discuss about refining of metals. Earlier we studied about how the extraction of metal can be occur from its ore to to specific metal. For a specific metal we use different and the extraction depends upon the reactivity series or the metal position in a reactivity series. आज हम बात करने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की दोस्तों। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम मेटल ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन से मेटल के ओर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। किस चीज पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उस मेटल की पोजीशन पे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कि कौन सा मेटल जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा वो सबसे टॉप पे होगा और जो सबसे लो रिएक्टिव होगा वो सबसे बॉटम में होगा। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की। अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम मेटल को तो रिफाइनिंग की क्या जरूरत है? बिकॉज when we do extraction still a metal contains impurities in it। जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके बाद भी हर मेटल के अंदर कुछ impurities बच जाती है, यानी मेटल एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में नहीं होता है और वो उसमें कुछ impurities मिली होती हैं। ऐसे मेटल्स को जो एक्सट्रैक्शन के बाद हमें मिलता है उसे हम कहते हैं क्रूड मेटल। क्रूड मेटल मतलब मेटल्स विद इम्प्योरिटीज। क्रूड मेटल द प्रोसेस, अभी रिफाइनिंग क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या कर रहे हैं हम इसमें कि हम जो क्रूड मेटल है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? प्योर मेटल के अंदर। क्रूड मेटल को प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट करने को ही कहते हैं रिफाइनिंग। अब ये रिफाइनिंग कैसे हो सकती है और कौन सा बेस्ट प्रोसेस है इसको करने का? तो रिफाइनिंग फॉर द बेस्ट प्रोसेस टू गो फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। Refining. The best process for doing the refining of metals is by electro refining. As the name suggests, electro means electrolytic or electrolysis। हमने इलेक्ट्रोलिसिस अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हम चार्ज देते हैं वाया बैटरी विद two terminals which attract the opposite charged ions and produce pure metal. Now we will discuss about electro refining. Electro refining is it is the method commonly used for those metals like which are very much prone to electrical current, like silver, copper, nickel, zinc, etc. These metals can be refined by electro refining process. In this process the electrolytic solution, the electrolytes is the solution of soluble salts in its form of the same metal. The electrolytic solution is the solution होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, वो किसके फॉर्म में होता है? मेटल सॉल्ट और वी कैन से डबल सॉल्ट ऑफ मेटल। लाइक अगर हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो इसके अंदर जो सॉल्ट यूज होगा या सॉल्यूशन यूज होगा, we use solution of कॉपर सल्फेट। किसका सॉल्यूशन यूज करेंगे? कॉपर सल्फेट का। अगर हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, कॉपर को इम्प्योर से प्योर मेटल के अंदर, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम किसका सॉल्यूशन यूज करेंगे? CuSO4, कॉपर सल्फेट। और कैसे ये कॉपर सल्फेट हेल्प करेगा इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, विल स्टडी इन दिस।
जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, when we pass electric current in this solution, this is your anode and this is your cathode. And the solution is copper sulfate. Like for example, if we take copper sulfate, the anode part is thick impure metal, which is a thick impure copper rod, and the cathode part is your pure copper rod. When we pass electric current in this circuit, when we pass electric current from the external source like battery, the electrolysis of this solution occurs, and the thicky part of anode, which is impure in nature, get dissolved with the solution, and from the solution itself, the copper sulfate solution, the copper get reduced to copper plus ion, copper 2 plus ion, and get attracted to the negative terminal cathode, which is a pure copper terminal used for extracting or refining metal from its solution. Like if we take example of crude copper, to refine crude copper from its solution. Now we will take this example. हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे क्रूड कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे या रिफाइन करेंगे। अगर हम क्रूड कॉपर को लेते हैं तो क्रूड कॉपर के साथ इम्प्योरिटी मेटल्स इज मेड अप ऑफ एनोड। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटेड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक एनोड की थिक बॉक्स बनेगी। ये क्या है? इम्प्योर कॉपर। कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा है? कॉपर सल्फेट। ठीक है। इम्प्योर जो टर्मिनल है वो किस पे डिपॉजिट कर रहे हैं? थिक एनोड। एनोड बना रहे हैं और एक प्लेट बना रहे हैं किसकी? प्योर कॉपर की। कॉपर मेटल। ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल हो गया? नेगेटिव। अब जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ जो इसको एनर्जी देगा, तो वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर? द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 इवन। इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट के साथ मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है। और जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड क्या होगा? कॉपर जो कि आयन फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बन जाएगा? कॉपर में। और ये कहां से आ रहा है? ये आयनिक फॉर्म फ्रॉम CuSO4 कॉपर सल्फेट। इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट करके क्या बना दिया? कॉपर, विच इज प्योर मेटल। और ये किस पे हो रहा है? एट कैथोड। हम बात करें अगर एट एनोड क्या होगा? एट एनोड जो इम्प्योर कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना देगा? कॉपर आयन। और ये कौन सा कॉपर है? ये इम्प्योर कॉपर है। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन। जो ये एनोड पे जो बच जा रहा है एंड द रेसिड्यू पार्ट ऑफ कॉपर विच डिपॉजिटेड एट एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। मड का मतलब आप जानते हैं कीचड़ या रेसिड्यू पार्ट। तो यहाँ एनोड मड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन किस चीज का होगा? इम्प्योर कॉपर का। कॉपर प्लस H2SO4 ये
पूरा का पूरा एनोड मड कहलाता है। इस तरह दोस्तों हम किसी भी कॉपर को, क्रूड कॉपर को प्योर कॉपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल टू गेट pure metal from crude metal. Thank you for watching this video.